Sat Shri Akal to everyone who has joined us from across the globe. Baisakhi, these lakh vadaiyan, and happy Bihu to everyone. Between today and tomorrow, we are celebrating these festivals. Varta series we started on 13th of December, and we had Hindustani classical singer Rekha Surya ji, acclaimed writer Mehrood Jafar, cycling enthusiast Vicky Bedi, Just Kaur from Art, who have been part of these conversations. The symbolic number 13 to represents a Sapthera philosophy of Guru Nanak and signifying that there is nothing auspicious or inauspicious about creation. It's all in our mind. Let's shed the fear of other and see everyone as part of ourselves. This will bring us to the paradigm of oneness, the universality of oneness. Today, we would also like to share that we are also launching Sangreh Sapthera Foundation that will work on innovation in process, product and livelihood sustenance. We would now be working with Chikankari, Zardozi, Fulkari, Bagh, Bagru Prints and Extravert Weaving. Today, for our special talk, we have Bhai Baldeep Singh with us. I first heard him describe Gurbani on a Gurpur in 2019, and then I had a privilege to have him for my exhibition at Visual Arts Gallery for a closer interaction. Bhai Baldeep is a direct descent of Guru Nanak's disciple Bhai Sadharan. Bhai Baldeep descends from a long lineage of Gursikh masters of Gurbani Kirtan Maryada, and today it's 13th generation exponent. Bhai Baldeep Singh ji is also a prime exponent or Khalifa, how we would call him, of the oldest Gharana of Pakhavaj and Mridang. An ardent socio-political activist who has even been part of and is vocal about his views on socio-political situations. He writes regularly magazines and research papers, and his passion is also creating and reviving instruments. Several of his articles have been published in top review magazines, edited books, and academic journals, including Sixth Formation of Routledge, book review, and seminar. He actively blogs. Today's talk is about Gurbani Sangeet as a unifier and his passion for revival of music and instruments. I welcome Bhai Baldeep ji. Dr. Kalra, for your kind words and introduction, and on top of that, the invitation to join you on your fourth conversation. And of course, what you do is we are all admirers, and you inspired many. But today, being Vaisakhi, is the actual Happy New Year of our civilization. So, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ. 1st January is a Firangi New Year. Ours is this year. This is a Desi New Year. So Desi ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ. Many compliments. I cannot hear you anymore. I think you're muted, Jaspal. Your voice got muted. Okay. Yeah. So this is Jaspal. I am craft passionate about crafts, and I've been trying to do these conversations on oneness, and we'll have a short glimpse into oneness in today's session, which is titled "Oneness Through Gurbani Sangeet." Bhai Baldeep ji, I've been reading about you. आपके बारे में काफी पढ़ा. You had been into aviation, and then you came into Gurbani. So what was that turning point which made you take such a decision? Yeah. Are we speaking in English, Punjabi or Hindi or what? Punjabi Hindi mix, I think हमारे लिए best रहेगा. Punjabi Hindi, अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं. नहीं अंग्रेजी की कोई ऐसी कोई खास जरूरत नहीं. तो आप यूपी में हैं, मुझे ही या हिंदी या उर्दू खिचड़ी है मेरी. मुझे ज़्यादा एक्चुअली दरअसल भाषा कोई भी मुझे अच्छी नहीं आती है.
लेकिन आपने जो बात की कि हिंदी पंजाबी रखें, तो मेरी खिचड़ी, जो फौजी जवाक हूँ तो मेरी खिचड़ी भाषा होगी। कभी कुछ उर्दू के अल्फाज देखेंगे, कभी कोई पंजाबी के या संत भाखा के। खैर, ऐसे बात करेंगे। 85 में मैं अपना पंजाब डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने अपने गांव गया। सुल्तानपुर लोधी में गांव है सैदपुर। तो मेरे दादा ज्ञानी भगत सिंह, जिनका जन्म 1857 का था, बड़े ऊंधा संग्रामी थे, फ्रीडम फाइटर थे। जैतो के मुझे में मेरे पड़चाचा बाबा ज्वाला सिंह के साथ रहे, अपने चचेरे भाई ज्ञानी शेर सिंह जी के साथ। गोलियां उन्होंने सीटियां मारती हुई, कानों से लांघती हुई देखी। और तो वो उस वक्त काफी बिल अवस्था में थे। तो हम अपना पंजाब डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने गए थे कि हमें इंदिरा गांधी जो फ्लाइंग एकेडमी है उसकी स्कॉलरशिप मिलने लगी थी। रैल्फ होते थे, कैप्टन रैल्फ, यानी कि करमिंदर सिंह, जो कैप्टन अमरिंदर के शायद चचा ठहरे। तो वो पंजाब सिविल एविएशन के मुखी होते थे, डायरेक्टर होते थे। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि तुम आओ। तो जब हम गांव गए तो मुझे मेरे दादा ने, उनको बड़ा शौक था, चाव था कि हम जो हैं, हमें तबले का शौक है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हम संग तबला बजाओ। तो आप जाकर अपने चचेरे भाई हेडमास्टर गुरदयाल सिंह जी के घर से तबला लेके आए, और हम जितना भी आता था हम साथ में तुन तुन करते रहे। तो उन्होंने फिर मुझे पहली बंदिश जो थी, पारंपरिक जिसे कहें, वो मुझे उस वक्त फिर सिखाई। वो यूं जाती, अगर आपको गाने से इतराज ना हो तो मैं आपको सुना दूं कि मुझे क्या उन्होंने सिखाया उस वक्त। गाना तो मुझे क्या आता था, और खास करके बंदिश नीचे जाती थी तो मैं जितना आ सका, मुझे पता याद था और धुन याद थी। उन्होंने कहा कि ये गुरु अर्जन देव जी की अपनी रचना है। मैं बड़ा हैरान हुआ। ये राग गाउड़ी है, जो भगत कबीर जी का फेवरेट राग है। गाउड़ी कबीर साहब का फेवरेट है। तेरे घर बसो हरि जन प्यारे, तेरे घर बसो, तेरे घर बसो, तेरे घर बसो हरि जन प्यारे, सतगुर तुम्हारे काज सवारे, सतगुर तुम्हारे काज सवारे, तेरे घर बसो हरि जन प्यारे, तेरे घर बसो। ये उन्होंने हमें करा दी। हमें तो जितनी याद हुई हमने कर ली। हम गांव आ गए, गांव से फिर चंडीगढ़ आ गए। तो हमने ऐलान कर दिया कि हम ये जो बसें जो उड़ती हैं वो तो हम फ्लाई नहीं करेंगे, हम लड़ाकू जहाज उड़ाएंगे। तो बड़े घर के हैरान हो गए, कह रहे कैसा बच्चा है कि उसको स्कॉलरशिप मिल रही है फ्री में कमर्शियल पायलट लाइसेंस वगैरह करने के लिए, और ये कह रहा है कि हम बसें नहीं उड़ाएंगे, हम लड़ाकू जहाज उड़ाएंगे, हम अंतरिक्ष में जाएंगे। तो फिर हम एयरफोर्स की ज्वाइन करने के लिए, हवाई फौज वायुसेना में ज्वाइन करने के लिए हम अपने स्वप्न और तीव्र करते रहे। तो 87 में मेरी मुलाकात मेरे दादा भाइयों से हुई। भाई अवतार सिंह, गुरचरण सिंह से मुलाकात, एक सरसरी मुलाकात 82 में हो चुकी थी, लेकिन वो भी बड़ी अद्भुत मुलाकात थी। पर 87 में जब मैं आया तो परंपरा के बारे में मुझे जनाई हुई। मेरी ग्रैंड आंट थी, बीजी मेरी छोटी भाई अवतार सिंह जी की धर्म सुपत्नी बीबी अमर कौर। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि तुम कौन हो, मैंने कहा मैं ज्ञानी भगत सिंह जी का
पोतरा हूं। तो वो हल्का सा आधा कदम पीछे हटे, मुझे गौर से देखा, जैसे पहचानने का यत्न कर रहे हो। तो मैं भी हैरान हुआ कि मुझे कैसे पहचाने, कि मुझे इन्होंने शायद पहले तो देखा नहीं। फिर उन्होंने पूछा, तुम किनके बेटे हो? मैंने कहा, जी मैं अमरजीत सिंह और सुखजीत कौर का बेटा हूं। उन्होंने आधा कदम जो पीछे लिया था, उन्होंने एक कदम बढ़ के मुझे अपनी गलवकड़ी में यूं समाया कि डॉक्टर साहब, मैं अक्सर कहता हूं कि वो गलवकड़ी से मैं कभी निकल ही ना पाया और ना ही निकलने की इच्छा है। उन्होंने मुझे फिर अंदर बैठक में बैठाया, तो अंदर बैठक के अंदर घुसते ही जब देखा, सबसे पहले पोर्ट्रेट था मेरे पड़चाचा बाबा ज्वाला सिंह का। बड़े मधुर और अद्भुत संग्रामी, 1952 में उन्होंने अपना शरीर त्यागा और बहुत बड़ी युग पुरुषों में जाने जाते हैं, तो उनका पोर्ट्रेट बड़ा रोबदार। मैंने कहा, ये कौन है? कहें कि ये तुम्हारे पड़चाचा हैं। मैंने कहा, ये क्या है? कहें कि ये ताउस है बाबा सरदार सिंह जी का। मैंने कहा, ये क्या है? कहें कि ये 2 पुस्तकें हैं, गुरबानी संगीत प्राचीन रीति रत्नावली, ये तुम्हारे दादा भाइयों ने लिखी हैं। सो यूं बस मैं वो किताबें वहां बैठा खोला, मेरे दादा भाई बाहर थे, बस वो तब से बस वो किताबें खुली हैं मेरी। वो ना मेरी बीजी अमर कौर जी की गलवकड़ी खुली और ना मेरी किताबें बंद हुई। ये 2 मेरे रहस्य हैं। तो परंपरा के बारे में मैं काफी साक्षर हुआ, मुझे ज्ञान बढ़ा। मेरा अगले 2 साल बहुत फॉर्मेटिव थे। जैसे जैसे मेरी शिक्षा मेरे दादा भाइयों से शुरू हुई, मेरे बड़े दादा भाई भाई गुरचरण सिंह सबसे पहले उन्होंने मुझे गोद लिया और वो उस गोद में अभी भी बैठा हूं मैं। और फिर 92-3 के बाद मेरे छोटे पिताजी यानी भाई अवतार सिंह जी से मेरी फॉर्मल शिक्षा शुरू होती है। पहले जो 5-6 साल बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिव जो हैं, इतिहास के बारे में जानकारी उनसे हुई। फिर मेरी मुलाकातें उसी दौर में 87, 88, 89 में भाई अशोक सिंह बागड़ा, जो मेरे हमारे पैरेलल जो खानदान चल रहे हैं, गुरु साहबों के जो भाई के हैं, जितने जिन जिन बड़े बुजुर्गों को, जैसे भाई रूपचंद जी को, मेरे बुजुर्ग भाई साधारण जी को पगड़ी बटाकर भाई बनाते थे, अपना भाई कहते थे, तो वो भाई रूपचंद जी का वंश है। उनके बड़े हैं भाई अशोक सिंह बागड़िया। उनसे इतिहासों के सब बुजुर्ग जंग इकट्ठे लड़े, यानी कि जो संग्राम है इकट्ठे जीवे। तो वो बहुत वार्ताएं जो हैं अलग अलग दिशाओं से, बड़ों से मुझे ज्ञान हुआ। 89 में फिर मेरा फैसला हुआ कि हमारी जो गुरु नानक की जो दात है, ज्ञान का जो मार्ग है, वो तकरीबन अब खत्म होने जा रहा है, नियर एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो मेरी फ्लाइंग की सिलेक्शन हो गई देहरादून क्लेमेंट टाउन में नवंबर 1999 में। नंबर 1 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की इंटरव्यू थी। मेरा चेस्ट नंबर 11 था। मेरे चेस्ट नंबर 10 है वो ग्रुप कैप्टन भूपिंदर सिंह, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में वो अभी टेस्ट पायलट हैं, बहुत ही ऊंधा चालक हैं वो। और भी मेरे कई बैचमेट्स हैं। दरअसल मैं जब गया, हॉकाई उड़ाया, उसमें हमने जरा सैर की। 4 साल हो चले हैं। तो मेरे 2-3 और बैचमेट मुझे मिले, जो मुझे याद नहीं था, पर वो कहें कि हम भी 147 फ्लाइंग पायलट्स कोर्स से हैं। जब हम उस वक्त दुचिती में थे कि हम वतन की सेवा, एक है फौज ज्वाइन करके या किसी और सर्विसेज में ज्वाइन करते हैं आप। मैं फौजी बच्चा हूं, मेरे मेरे बाप फौज में थे, हवाई फौज में थे। तो हम सबको एक होता था कि वतन के लिए जो सेवा है, वो कौम की जो सेवा है, वो एक किश्तियां, जैसे सबमरीन हो या आर्मर्ड टैंक्स हो, आर्टिलरी हो वगैरह, इन्फेंट्री डिविजन हो, स्पेशल फोर्सेस हो या लड़ाकू जहाज हो, किसी भी सर्विसेज में आप ज्वाइन करते हैं, सिविल सर्विसेज हो, पैरामिलिट्री हो, आप वतन की सेवा करते हैं। पर फिर हमें एहसास हुआ कि अपनी सभ्यक जो दात है, गुरुओं की बख्शी हुई जो विजन है, उनके जो स्वप्न लिए हुए हैं, उनको सकारात्मक करने की जो काबिलियत है, उसको बचाना, उसकी परवरिश करना, उसको संभालना, बड़ों की, हमारे जो तवारीख के, हमारी कौम की, हिंदुस्तानी कौम की जो तवारीख में जो बड़े हुए हैं, भक्ति मार्ग के बड़े हुए हैं। भगत जयदेव हैं गुरु ग्रंथ साहब के सबसे पहले ऑथर, 1170 में जन्मे। और पीरों की जो परंपरा है, सूफियों की, बाबा शेख फरीद जो उनसे 3 साल छोटे थे, 1173 में जन्मे।
और गुरु मार्ग जो गुरु नानक देव जी से शुरू होता है, 1469 में वो जन्मे, और सिख मार्ग, जो कुछ जो सिख जो गुरु हुए, 9 गुरु, गुरु अंगद देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, और कुछ जो सिख ब्रह्म ज्ञानी हुए, जैसे भाई मर्दाना उनका श्लोक है, भाई सत्ता बलवंत जो मिरासी थे, मिरासियों में भी नीची जात के मिरासी कहते थे उनको, लेकिन गुरु नानक ने अपने साथ बिठाया है, तो वो भी सिख ब्रह्म ज्ञानी हुए, उनकी बानी भी गुरु ग्रंथ साहिब में है। और तमाम सिखों की बानी, मथुरा के भट्ट जो हुए, भट्ट संप्रदाय से जो हैं, वो उनके उनके श्लोक और सवैये वगैरह आदि रखे। तो इन्होंने जो विजन दिया, इन्होंने हिंदुस्तान को बचाया। लोग आज नाशुक्रे से हुए हैं, इनकी कुर्बानियां भूल गए, इन सब की विजन भूल गए। जैसे कबीर साहब का एक पदा याद आ रहा है, अगर मैं आपको सुनाता हूं। वो कबीर साहब है, गुरु गोविंद सिंह नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, गगन दमामा बाजयो, गगन दमामा बाजयो, पर्यो निशान घाओ, गगन दमामा बाजयो, गगन दमामा बाजयो, पर्यो निशान घाओ, खेत जो मांडे सूरमा, खेत जो मांडे सूरमा, अब जूझन को दाओ, गगन दमामा बाजयो, सूरा सो पहचानिए, जो लड़ा दीन कहेत, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लड़ा दीन के हेत, पुरजा काटी मराए, कब हूं न छाड़े खेत, गगन दमामा बाजयो, गगन दमामा बाजयो, पर्यो निशान घाओ, खेत जो माने ओ सूरमा, खेत जो माने ओ सूरमा, अब जूझन को दाओ, गगन दमामा बाओ। ये जो अब जूझन को दाओ, ये जो अब है ना, ये कबीर साहब का रचा है कि अब वक्त है जूझने के, दाव पेच लगाने के। और कहते हैं कि सूरा वो है, असल में सूरमा वो है जो दीन के लिए, जो अंडर सर्व्ड है ना, जिनकी डिग्निटी छीन ली गई है, जिनकी आबरू जिनसे छीन ली गई है, उनके लिए, उनके हक में लड़ना खड़ना, वो सूरमापन है। ये अपने स्वहित में, जैसे गुरु तेग बहादुर कहते हैं कि मेरो मेरो सब कहत है, हित से बाध्यो चीत, अपने स्वहित के लिए, अपने ही धर्म के लिए कहता, ख्वाबी धर्म जो है कईयों के बने बहुत है दुनिया में, वो सोचते हैं कि हम यूं लिफाफेबाजी करने के लिए कहें कि हम सब एक हैं पर जीते हैं लोग वखेमेपन में, अपने अपने अपनी ट्राइबल इंस्टिंक्ट्स लेकर बैठे होते हैं, अपने वो पक्षपात धड़ेबाजियां लेकर बैठे होते हैं। सो वो जो कबीर साहब का, और फिर गुरु नानक देव जी की जो बात है, वो कि जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गरी मुड़िया। प्रेम यूं आसान नहीं है खेलना, प्रेम खेलने के लिए भी अहंकार अपने पहले गंवाने पड़ते हैं, त्यागने पड़ते हैं। तो ये तो सिर्फ शर्त गुरु नानक की गली में घुसने की है,
उनके द्वार में प्रवेश करने की कंडीशंस और हैं। अहंकार तो सिर्फ गली में प्रवेश करने के लिए, गली का वीजा लेने के लिए मिलता है गुरु नानक की गलियों में। और एक और बात डॉक्टर साहब आपसे साझा करूं, कबीर साहब के पास फिर ले चलता हूं, काशी में। वो कहते हैं कि वेद कतेब कहो हो मत झूठे, झूठा जो न विचारे। ये किसी और ने नहीं कहा। ये बहुत जरूरी है कि पीरों की सूफी परंपरा, भक्ति मार्ग और गुरु सिख मार्ग की जो एक अमेलगम है, कि आप किसी वेद शास्त्र को, इंडिक और सेमेटिक जो ट्रेडिशंस हैं स्क्रिप्चर्स की, उनमें से किसी को आप झूठा नहीं कह सकते। जो उनके ऊपर विचार ना करे वो झूठा है। सो ये जो सारी विजन का जो एक अंडरस्टैंडिंग था, मुझे जब मिला तो मुझे लगा कि इस विद्या प्रणाली का, हमारे वतन की जो विद्या प्रणाली है, ज्ञान मार्ग की जो सामग्री है, वो अलोप होने से बचाना भी वतन की सेवा है। सो हमारी सिलेक्शन होने के बाद हमने फिर फैसला किया, कड़वा घूंट पीकर। दिल में तो जनाब बहुत था पैशन फ्लाइंग के लिए। अब भी कभी कभी उड़ा लेते हैं। दोस्तों यारों के कईयों के जहाज हैं दुनिया में, कई कई जगह, यूरोप में भी, अमेरिका में, कनाडा में। दो चार दोस्त हैं जिनको जहाज़ों का शौक है, तो अपना राजा वो राजी कर लेते हैं कभी कभी। लेकिन ये समझ आ गई थी कि सभ्यता, सो आई एम लाइक ए सिविलाइजेशनल वॉरियर, कि सभ्यता की सामग्री को बचा लेना खंडरों में से, उनकी परवरिश करना, उनको कंजर्व करना, उनको जीवित रखना। क्योंकि डॉक्टर साहब सूक्ष्म जो कलाएं हैं ना, इंटेंजिबल हेरिटेज है, वो फ्रेम कर कर या किसी सलाखों पे या हुक्स पे टांग कर बचता नहीं है। वो जो सूक्ष्म, जो अबोध विरासत है, वो जीनी पड़ती है, हर हर कौम को जीनी पड़ती है, और हर कौम की हर पीढ़ी को सीख कर, समझ कर फिर जीनी पड़ती है। तो वो बहुत नाजुक एक, यानी कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो क्रिया है किसी कौम के लिए, वो अपनी बुजुर्गों की बख्शी हुई अमानतों को बचा रखना, जीवित रखना उनको, और अगली पीढ़ी को सौंप देना। इससे ज्यादा वाइटल किसी कौम के लिए कुछ नहीं होता। इकोनॉमीज आपकी आती जाती हैं, सड़कें आपकी बनती टूटती रहती हैं, अस्पतालों के यंत्र नए पुराने होते रहते हैं, नए फिर आते हैं, फिर पुराने। पर जो सभ्यता है, उसकी जो अमानत है, वो नित नवी है, और एक बार खो जाए फिर वो हाथ नहीं आती जनाब। सो इन ख्वाबों में, इन ख्यालों में, इन बातों में मैं उलझ गया, शायद सुलझ गया। यूं है हमारी कहानी। अभी सभ्यता म्यूजिक ऑफ लाइट नाउ। जी। आपकी लास्ट कन्वर्सेशन से मेरे को एक बात, आज सच जुगाड़ सच जो आपने एक्सप्लेन किया था, उसका जो मैं एक बार चाहूंगा आप एक बार फिर से ऑडियंस से वो शेयर करें, बिकॉज आई थिंक दैट इज द ट्रू एसेंस दैट यू स्पोक अबाउट। तो आप आज सच जुगाड़ सच वाला मुझे याद नहीं कि आपसे कौन सी बात, कई बातें हैं उसकी। आपको कुछ याद है कि क्या हमने बात कही थी? यू वर टॉकिंग अबाउट इट्स, कि किस तरह से वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हम उसको शब्द की तरह पढ़ते हैं, लेकिन उसमें बहुत डीपर मैसेज है। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, पर कुछ जो ख्याल अब आ रहे हैं मैं साझा करता हूँ कि गुरु नानक ने मूल मंत्र उच्चारा, और वो भरम का भांडा जो है, धर्म के नाम पे, कर्म के नाम पे बहुत सोचा समझा गया है। उसकी इंटरप्रिटेशन की है धर्म की और कर्म की। अलग 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 धर्मों ने, अधर्मों ने, यानी कि धर्म से जो अलग चलते हैं उनको मैं अधर्म कह रहा हूं, मतलब एक लाडले व्यंग से। अधर्म मैं पेट्रोनाइजिंगली नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उसकी भी बड़ी क्रिया है। परमात्मा को ना मानने वालों में भी बहुत ऊंधा स्कॉलरशिप है, इनफैक्ट टक्कर की स्कॉलरशिप है। और हम जो गुरसिख मार्गी हैं, नानक पंथी हैं, हमारे में तो हम तो विचारी हैं, विद्या विचारी हैं। तो हमारे तो बुजुर्ग हुए बड़े बड़े, कईयों की गाथाएं कि आज वो बोलेंगे, एक दिन बोलेंगे कि भगवान है, तो 5-5 6-6 घंटे वो बात कहेंगे कि भगवान है, तो अगले दिन कहेंगे कि कल मैं फिर बोलूंगा।
6 घंटे 7 घंटे फिर बोले गए क्या कि भगवान नहीं है। वही बंदा खड़ा होकर साबित कर जाता था कि भगवान है और अगले दिन साबित करता था कि भगवान नहीं अपने आप। ये नहीं कि दो अलग बंदे बात कर रहे हैं। आजकल फैशन है कि अच्छा जी आप आइए, जैसे मुझे बड़े लोग टीवी पे बुलाते थे, हमारे कई मित्र जो अमित्र हुए, कुमित्र निकले, कई टीवी के बड़े बड़े एंकर देश के, वो एक तरफ बिठाएंगे जी आप जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करें, अच्छा जी आप उनके हक में बात करें, अच्छा जी आप जरा अरविंद केजरीवाल की जरा लीरें उतारें, अच्छा आपने उसकी उसकी तारीफ करें। ये ना अलग अलग बंदे बिठाते हैं। लेकिन पुराने जो विचार की जो संप्रदाय है हमारे वतन की, उसमें एक ही बंदे को साबित करना होता था और मानकर, यानी कि हमें भी यूं लगे कि इस बंदे का अपना विश्वास है कि हाँ भगवान नहीं है, और अगले दिन वही बंदा कह रहा है कि नहीं नहीं भगवान तो है। कहेंगे जी कल तो आपने कहा था कि भगवान नहीं है। कहने का है कल कहां, मैं तो कह रहा हूं। इस तरह की हमारी बड़ी रोचक और अद्भुत जो बातें हैं। गुरु नानक का जो मूल मंत्र है वो इंटरप्रिटेशन, assumption और एस्टिमेशन जो है कुदरत बनी कैसे, यानी कि ब्रह्मांड या जो पूरी जो कायनात है वो बनी कैसे और बनाई किसने, ये बड़े सवालों पे कोई कोई भी धर्म, कोई जो धुरा है वो ज्ञान का इन सवालों से शुरू होता है कि दुनिया कैसे बनी है जी। तो जैसे साइंस भी मानती है दुनिया, जैसे कहेंगे बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं वो कि ये बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, यानी कि वो भी इसी बात के लिए करते हैं कि दुनिया आई कैसे। सो गुरु नानक अपनी बात अजब सी करते हैं। सबसे पहले एक गणित का एक लगाते हैं, यानी कि गुरु ग्रंथ में, गुरु पंथ में जो आगे कभी नहीं हुआ इतिहास में, और अब क्या होगा, क्योंकि एक अंक जो था वो तो गुरु नानक ने रख लिया। अब आपके पास शून्य पहले बरता गया, शून्य बरता गया, लेकिन गुरु नानक ने एक कमा लिया। अब मेरे और तुम्हारे पास हम फैसला कर लेंगे, दो मैं लूंगा, तीन आप लेंगे या चार लेंगे, हम लड़ लेंगे कि दो किसका होगा। सो खैर दो भी द्वैत की बात भी करते हैं, दो भी जा चुका है, यानी कि शून्य भी चला गया, एक गुरु नानक के पास है, और द्वैत की दो की वो भी गया, यानी कि हमसे तीन, शायद तीन भी चला गया। जैसे ईसाइयों के पास भी ट्रिनिटी है, और हमारे यहाँ हिंद भी कुछ संप्रदाय हैं वो भी ट्रिनिटी की बात करते हैं। जैसे ये शैव परंपरा का ध्रुपदा याद आ रहा है मेरे को, अंत जो गायत जोगी शिव कनक विष अमी आद विष भोगी शिव नाभि के कमल ते, नाभि के कमल ते तीन मूरति भई भिन्न जाने सोई नरक भोगी शिव आदि मर। सो ये एक बात है, कहें कि नाभि के कमल ते तीन मूर्ति भई। सो दरअसल तिकड़ी भी जो है, तीन अंक भी जो ले गया चार, अब चार भी तकरीबन गया हुआ है कि चार वाणियां हैं, चार खानियां हैं। सो पंच भी चले गए, पंच विकार है, पंच जो है वो श्रृंगार है।
6 शायद मिल जाए, 6, अब पता नहीं, खट शास्त्र भी हैं। मुझे लगता है गणित तकरीबन 100 के 100 चले गए, उसके बाद हम आंकड़ा देखेंगे। खैर, ये बात पते की है जो मैं कर रहा हूं। गुरु नानक जो है, एक जो न्यूमेरिक है वो गणित का पहले लगाते हैं। पहले कहते हैं एक ही है जिसने अपने आप को रचा, या जो अरचित ही है, जो अरच यानी कि रचने की जिसको जरूरत नहीं, वो एक ही है। पर जो ओंकार का मंडल है, निरंकार के मंडल में ही जो उसकी उसके उसके बीच में है, वो भी उसी एक का है। तो वो मूल मंत्र में सतनाम कहते हैं, उसकी मैं लंबी हो जाएगी वार्ता। कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभंग गुर प्रसादी। अजूनी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये योनि में कभी नहीं आता, यानी कि वो कभी अवतार नहीं धरता। ये इंटरप्रिटेशन है। जैसे मेरे को भी बहुत बड़ा मानने वाले बहुत लोग हैं, वो मुझे भी कहेंगे कि आप भी अवतार हैं जी। तो कईयों के ख्वाब हैं कि मैं किसी का अवतार हूं, कोई कहता है मैं किसी और का अवतार हूं। ये जो अवतार मान जाने की जो बातें हैं, वो हमने भी हटाई हैं, यानी कि हमारे को भी जाना जाता है। हम हंस खेल के निकल जाते हैं हम गलियों में से, कभी उनमें बैठते नहीं अपना तख्त जमा कर। जो परापुरुष परमेश्वरा है, पारब्रह्म निरंकार है, वो जैसे राम है वो अप्रभंश रमैया का जो रमा हुआ है, श्याम अप्रभंश समिया को जो समाया हुआ है, कि जहां का अमित साजन है समिया तिस जन को। आप आदि संस्कृत पढ़ लें, जो पुरानी जो भाषा है, जो पुरानी संस्कृत, उसमें आपको रूट मिल जाएंगे हर। जैसे स अक्षर का ही अर्थ नारायण है, भगवान है। सच, बंदा पूछे कि स के बाद चो क्यों लगा, च क्यों लगा, च का क्या अर्थ है। आप अगर भाषा के मंडल में जाएंगे, आपको सारे भेद स्पष्ट हो जाएंगे। उसकी जो एडेप्टेशन है अलग अलग काल में, कोई एक संप्रदाय प्रबल हुई तो उसका एक बहुत एक जैसे कहें हेरिटेज आ जाता है। लेकिन गुरु नानक जो उस एक की, निरंकार की, जो अगम है, अगोचर है, अगाध है, जो असीम है, अनंत है, बेअंत है, वो जो आदि में है, मध्य में, अंत में है, वो अजूनी है। और वो उसके बाद वो बात करते हैं जप की। उनका जो शुरू होता है उसमें पहले एक श्लोक है कि आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। और ये गुरु गोविंद सिंह जी की चौपाई में एक आता है कि आदि कहते हैं कि आदि अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। इसमें वो बताते हैं कि मेरा गुरु कौन है, गुरु गोविंद उसमें बताते हैं कि जो आदि से अंत तक जिसका एक ही अवतार है। आदि में अवतार क्या है, वो अरूप है। गुरु गोविंद जी वचन फरमाते हैं अपने जाप के शुरू में ही कि चक्र चहन अर बरद जात अर पात नहन जह, रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत कह, अचल मूर्ति अनुभव प्रकाश अमितोज कहित जाय, कोटि इंद्र इंद्रान साहु साहान गणित जाय, त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेति नेति वर्ण तृण कहत, तब सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमति। तो जिसका ना चक्र है, ना चिन्ह है, ना वर्ण है, ना जात है, ना पात है, जिसका कोई कह नहीं सकता, जिसका ना रूप है, ना रंग है, ना रेख है, ना भेख है, कोई जान नहीं सकता। ऐसा जो अरूप रूप है जिसका, अरंग रंग है जिसका, जो न नर है न नारी है, वही स्वरूप में आदि से अंत तक वही एक अवतार है। गुरु नानक और गुरु गोविंद और भगत कबीर और सब कहते हैं, बाबा फरीद सब कहते हैं कि हमारा वो गुरु है। ये जो आदि सच जो है वही होसी भी सच, वही है जो आदि अंत में एक अवतार है। और जो इसके शायद पहला जो जप जी का जो पदा है कि सोचे सोच ना हो वही जे सोची लखवार, चुपे चुप ना हो वही जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख ना उतरी जे बना पूरिया पार, सहस्याण पर लख हो तक न चल नाल, किव सचियारा हुई है किव कुड़े तुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। इसको मैं बहुत बहुत ही फिनोमिनल समझता हूं, सारी वार्ता को। गणित का एक अंक, उस एक की डिपिक्शन या डिस्क्रिप्शन जो मूल मंत्र में कही, गुरु नानक ने हम सबको सिखाई और दोहराई, स्पष्टीकरण किया।
और उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि अरे निर्भाव तो पहले अक्षर इस्तेमाल हो चुका संस्कृत में, हम नहीं इस्तेमाल करेंगे ना। जो अच्छा है वो अच्छा है। राग भैरव तो पहले गाया गया, मैं क्यों गाऊं ना, गुरु नानक को भी पसंद है, तो उनको दिक्कत नहीं है पहले अगर कुछ है, क्योंकि वो नित नवा है, वो पहले ना पुराना है ना नया होता है, वो अटल है। सो इसमें वो पहला सवाल करते हैं इस पहले पदे में कि किव सचियारा हो, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे पहला सवाल। पहले जवाब तो दे देते हैं, कई जवाब दे देते हैं, मूल मंत्र में जवाब ही जवाब है, पहले श्लोक में जवाब ही जवाब है, और फिर एक एनालिसिस है चार क्रियाओं का जिसमें इंसानियत ने अपने आप को हंडाया है, अपने आप को बरत के देखा है, आजमा कर देखा है, और अभी भी मानते हैं कि शायद जो मुक्ति है, निर्वाण पद है, इन्हीं चार क्रियाओं से शायद हमें मिलेगा। तो उनको गुरु नानक देव एड्रेस करते हैं, अपना क्रिटिसिज्म देते हैं। वो अपना अपनी नास्तिकता इन चारों से वो अपनी जाहिर करते हैं, कहते हैं कि सोच है सोच ना हो। ये सोच जो है वो संस्कृत ही शौच से शायद कहते हैं कि अपने आप को धो देना। सो एक जो क्रिया इंसान करता रहा है वो तीर्थों में जाकर या किसी पाकीज़ा जल को, जैसे ईसाइयों में, इस्लाम में, कई धर्मों में, कई ट्राइबल ट्रेडिशंस में, कई जो नेटिव ट्राइब्स हैं अलग अलग दुनिया के कोनों में, उनमें भी है कि हम किस पहाड़ के किस चश्मे में जाकर या किस नदी में जाकर किस जगह पे किस दिन साल में या कुछ सालों में स्नान करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो वो बात है कि अपने मन को धो देने की बात है कि शायद स्नान करने से मन की जो मैल उतर जाए। तो कहें, गुरु साहब कहते हैं कि ना, ये भी कभी कामयाब नहीं हुई कि सोचा सोच न हो जे सोची लखवार। आप लाखों बार स्नान कर लें, कहीं भी जाकर, कभी भी जाकर, किस तरह भी जाकर, वो मैल नहीं उतरती मन की, मन मैला रहता है। अजमा लिया, कहें कि इंसानियत देख ली, सब कोख लिया। दूसरी क्रिया जो इंसान ने की कि अच्छा मन की मैल ना उतरे, तो दूसरा उपाय देखो, कहें कि चुप है, चुप ना हो वही जेला, लेकिन कहें कि चुप है। दूसरी क्रिया है सोचा है, पहले से सोचा है कि स्नान कर लेना, धुलना अपने आप को। मैं दूसरी क्रिया है चुप है, कि चुप रहना। पर साथ में सो आप देखें कि सोचा है, फिर गुरु नानक कहते हैं साथ में सोच ना हो वही जे सोची लखवार। तो कहते हैं चुप है, चुप ना हो वही जे लाए रहा लिफ्तार, के चुप रहने से मन चुप नहीं होता। आप जितने मर्जी आसन विपासन जो मर्जी करते रहें, मन को आप क्रिया, ठीक है 5 मिनट 10 मिनट 50 मिनट बाद में आपसे कोई बात करेगा, आपका ख्याल फिर जाएगा कहीं, तो वो क्रिया खंडित हो जाती है। सब खंडित क्रियाएं हैं, मौसमी बुखार होते हैं। सोचा है, सोच ना हो गई जे सोची लखवार, चुप है, चुप ना हो गई, यानी मन चुप नहीं करता। जे लाए रहा लिवतार, लगातार आप उस क्रिया में लगे रहें तो भी जो मन है, आप लड़ते रहेंगे, वो ख्याल नहीं आएगा, उसको आप देखेंगे, वो चले जाएगा, फिर नया ख्याल आएगा, उसको आप देखेंगे। वो क्रिया में आप लगे रहें लगातार जीवन के अंत तक, उसके बाहर भी वो कहें कि चुप नहीं होता। तीसरा उपाय सोचा कि अच्छा अगर मन की मैल नहीं उतरती, मन चुप नहीं कर सकता, तो ऐसा है कि इसके ख्वाब ही आते हैं ना, जो ख्याल आते हैं, इसका कोई ख्वाब है, तो कहें कि चलो इसको फिर ना भूख्या, यानी कि मन भूखा बहुत है, सदा भूखा रहता है, उमंग करता है, कभी कुछ कभी कुछ, ये और होर 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 कहते हैं भुख ना उतरी जे बन्ना पूरिया पार। अपनी जितनी आशाएं हैं उनको पूर्ण करते रहें, पूरी आशा जी मनसा मेरे राम, कि आशा पूरी करते रहें, पूरते रहें, लेकिन कहें आप भार लाद दें मन के ऊपर आशाओं, पूर्ण हुई आशाओं का, अचीवमेंट्स का, एक्यूमुलेशंस का, पर उसको संतुष्टि नहीं आएगी, कंटेंटमेंट नहीं आती कभी उसको। तो ये तीसरा जो है पुख्या, भुख ना उतरी जे बन्ना पूरी अपार। फिर चौथी जो क्रिया है, कहें कि अच्छा मन की मैल नहीं उतरती, मन चुप नहीं होता, मन की भूख नहीं पूरती, तो क्या रह गया? उन्होंने कहा कि
इसको ना अकलमंद कर दो, मन को ज्ञान दे दो। सहस्याणपा यानी कि हजारों ज्ञान इसको इसके सुपुर्द कर दें, उसको विचारी बना दें, उसको पुजारी बना दें उस ज्ञान का, उसको हम पीर औलिया बना दें उन ज्ञान का, हर चीज सिखा दें। सहस्याणपा लख हो है ता इक न चल नाल। सहस सहस यानी कि हजारों ज्ञान, लाखों बार आप उनके ऊपर चिंतन कर लें, सीख लें, पर एक भी साथ नहीं जाता। यानी कि अंत में साथ नहीं चलता, सब यही रह जाते हैं, यही की बातें हैं। तो फिर पहला सवाल करते हैं कि क्यों सचियारा हुई है? वो जो सच है, जो आदि में है, अंत में है, उसका उसका कैसे होना है सचियारा? यानी कि उस सच का, वो सच जो आदि में था या आदि में है और जो अंत में भी अभी है, क्योंकि उसमें काल नहीं होता, वो आदि भी अभी है, अंत भी अभी है। तो ये गुरु नानक की जो बात है, वो उसमें हुक्म की बात करते हैं, उसकी रजा की बात करते हैं। रजा और हमारी जो गुरु नानक की संप्रदाय में कर्म का और धर्म का, ये धर्म की बात हुई, कर्म का जो है, कर्म योगी जो है वो ना मैं हो सकता हूं ना आप हो सकते हैं। ये जो कर्म की फिलॉसफी यूं डिसमिस कर देते हैं गुरु नानक, वो कहते हैं कि जो कर्मी तो एक है। वो कर्मी कौन है? जो करता है। मैं तो किया हूं, मैं तो कीता हूं, मैं करता नहीं हूं। जो कीता है वो कभी कर्म, वो ऐसे अब आपकी तरह ना यूं एक सांस के अंदर ज्ञान आता है, वो ब्रह्म ज्ञान है जो एक पल में आ जाए। दो सांस लेना पड़े तो यानी कि सिखाने वाले में कमी है, सीखने वाले की तो क्या बात करें। अभी सिखाने वाले को ध्यान कर्म नहीं आया। तो गुरु नानक कहते हैं, नानक हम आदमी है एक दमी मोहलत मोहत ना जाना। कहें कि मैं हूं ही एक सांस का बंदा, तो अगर मुझे आप कहेंगे कह रहे नहीं इसके लिए तो 4 सांस चाहिए, तो मैं कहां जाऊंगा, बलदीप सिंह कहां जाएगा? सो यूं कर्म का भांडा फांस जो है वो मुक्ति यूं होती है, ये जानकर एक पल में एहसास करके कि मैं तो कीता हूं, मैं किया हुआ हूं। जो किया हुआ है वो कभी कर्म अपना एक्यूमुलेट नहीं कर सकता। कर्ता जो है ये सारा कर्म उसका है। कोई भी हुक्म है अंदर, सबको बाहर हुक्म ना कोई, हर चीज हुक्म में है। द्वैक, हर खुशी, हर गमी, हर अच्छाई, हर बुराई, ये की हुई रची हुई करतार की है, उसका अजब खेल है। सो ये बातें हैं जो ख्याल में आई। ग्रेट थॉट्स, करता एंड किया हुआ। और मेरे ख्याल से आपकी भी कन्वर्सेशंस का ना कोई बिगिनिंग हो सकती है ना एंड हो सकता है। बट एक लास्ट मैसेज नानक शाही के न्यू ईयर पे, आपका लोगों के लिए स्पेशल मैसेज, एंड थैंक यू फॉर गिविंग सो मच टाइम। नो नो, इट इज माय प्लेजर। मेरा मैसेज क्या है? मैं तो ये कह सकता हूं कि दुख है कि हम कहते हैं कि हम एक हैं, पर हम दो भी नहीं हैं, हम अनेक हैं। और हम अनेक हैं, हमारा कर्ता एक है, हम अनेक हैं, ये मान लेना चाहिए हमें। हम ये ना कहें कि अरे हम सब एक हैं। हम सब एक कैसे हैं? अगर मैं वैष्णव हूं तो मैं शैव कैसे हो जाऊं? अगर मैं शैव हूं तो साकत कैसे हो जाऊं? अगर साकत हूं तो तांत्रिक कैसे हो जाऊं? तांत्रिक हूं तो जोगी आदि कैसे हो जाऊं? सो अगर मैं ज्ञान का शिष्य हूं, ज्ञान मार्गी हूं, तो वो बात अलग है। सो हमें मान लेना चाहिए कि हम अलग हैं, एक बात। और जस्ट ए सेक, ये मैं एक मिनट मैं कह दूं जरा कि वो ड्रिल ना करें। सो माफी चाहता हूँ, उठा नहीं रहे हैं, खैर। कि हम अगर पहले ये मान लें कि हम अलग हैं, तो हम एक दूसरे से वार्ता करना शुरू कर सकते हैं। जब हम भ्रम में रहते हैं ना, कह रहे हम सब एक हैं, अरे कर्म में तो दिखता ही नहीं कि हम एक हैं।
हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े अपने आप को कहते कोहाते जो स्टेट्समैन बनते हैं लोग, वो कहेंगे कि हम सब एक हैं, पर आपके कर्म में तो है नहीं। सो जैसे हमारे वतन में गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, बड़े बड़े इस वक्त इमारतें बन रही हैं। हर कोई अपनी इमारतें बनाता है, अपने तरफ की अपनी तरफदारी करता है। बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं। अगर सिख होंगे तो खालसा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, है जी। अगर कोई किसी वैष्णव साकर शैव संप्रदाय से, तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे 100-100 200 मीटर बुत बनाए जाए। गांव में, पंजाब में बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, पर जो गरीब है उनके पास खाने को अन्न नहीं है। सो हम अपने हित की, स्वय हित की बातें जो करते हैं, मैं गुजारिश करूंगा सबसे, नया साल है, कि एक दिन के लिए, एक पल के लिए अपने से हटकर दूसरे के लिए भी उतना सोचें जितना आप अपने लिए सोचते हैं। दूसरे धर्म के बारे में सोचें जितना अपने धर्म के बारे में सोचते हैं, या अपने मार्ग के बारे में, चाहे वो एथीस्ट मार्ग है, या वो मानने वाला है या ना मानने वाला है। भगवान छोड़िए, आप किसको मानते हैं उसको आप कहें कि मैं जो मानता हूं, जो भी मानता हूं, पर मैं उतना ही मानूंगा जितना मानना चाहिए, पर दूसरों को भी मैं उतनी ही इज्जत दूंगा अगर वो कुछ और मानते हैं। मैं अपने मन से द्वेष जो है वो नहीं रखूंगा। मन में द्वेष, या मुझे मालूम नहीं, हिंदी मुझे इतनी ज्यादा आती नहीं कि यानी कि खोटा भाव रखना किसी के लिए, किसी को कम जानना, अपने से छोटा जानना, ये नहीं जानूंगा। सबको मैं समता की समदृष्ट हो जाऊंगा। और कोई भी अगर मेरे पास मौका आता है जीवन में, सबके बारे में सोचूंगा, यानी कि बांट के खाऊंगा, उसके मैं हिस्से बराबर के करूंगा, और मैं अपना एक हिस्सा लूंगा उसमें से। तो ये अगर मेरी तो कोई हैसियत नहीं कि किसी को सुझाव दे सकूं, गुजारिश कर सकता हूं कि जरा यूं अपने आप को ढालें तो शायद शांति आए। आप देखें रूस में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, जिस तरह के आम जो लोग हैं उनके ऊपर किस तरह अत्याचार हो रहा है, और कौन कसूरवार हैं? जो ताकतवर हैं, जिनके पास इतनी ताकत है कि वो इतनी ताकत को बरकरार रखने के लिए उनको और सामग्री, और ताकत, और पैसा चाहिए। और वो ताकत का जरिया क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज से, यानी कि यूरेनियम के सबसे बड़े रिजर्व हैं, उसके अंदर गैस डिपॉजिट्स हैं। और जो वेस्ट है वो धीरे 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 हर जो दुनिया की नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर कब्जा करना चाहता है। और जो रूस वाले वो कहें कि आप आते 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 यहाँ आ गए तो हम लड़ाई करेंगे। अब वो लड़ाई हो रही है। अब सब कसूरवार हैं। एक मीडिया कहेगा कि अरे नहीं रूस कसूरवार है, उनका मीडिया कहेगा कि नहीं 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 रूस वाले नहीं, पश्चिम कसूरवार है। सब कसूरवार है, सब गुंडे हैं, सब राक्षस हैं। तो ये यहाँ पे हम अमन की बात क्या करें? अब अमेरिका कह रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएंगे, हेग में। अब तक तो वो मानता ना रहा, यानी कि जब अपनी अपनी तरफदारी की बात आई तो करते हैं। तो ये होता तब है जब हम हड़पना चाहते हैं हर चीज को। हर जो दौलत है, चाहे वो कुदरती दौलत है या इंसान की बनाई हुई, उपजी हुई ख्वाबों की, ख्यालों की कीमत की दौलत है, आइडियाज की दौलत है, जो वो उसके ऊपर हम काबिज होना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। अगर खरीद कोई बिके ना तो हम उसको जबरन, हम क्योंकि बलात्कारी ताबियत भी रखते हैं, हम जबर करते हैं कि आप अगर ना मानेंगे तो हम बस फिर हम जबरदस्ती करेंगे, हम मनवा लेंगे, ना मानेंगे तो भी हम आपको छीन ले जाएंगे। ये इससे मैं चिंतित हूं, इस ताबियत से, क्योंकि दुनिया में बहुत ज्यादा हावी है। फ्रीडम यानी कि आजादी का एक लिफाफा है, खाली लिफाफा है आजादी का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। जैसे हमारे वतन में अब देखिए, मैं अगर कार्टून बना दूंगा ना नरेंद्र मोदी जी का, या अरविंद केजरीवाल का, या भगवंत मान का, या ममता बनर्जी का, या जया ललिता का, या मायावती जी का, या आदित्य योगी आदित्यनाथ, किसी का कार्टून बना दूंगा तो मुझ पे कोई धारा लगा के मुझे कैद कर देंगे, और मैं अगले 20 साल 25 साल जो है अपना जीवन, जो काहे की फ्रीडम ऑफ स्पीच है।
और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी क्या है। अगर मैं कोई अगर बात लिखता हूं तो मुझे यानी कि निकाल दिया जाएगा, घर से निकाल दिया जाएगा, या पार्टी से निकाल दिया जाएगा, या किसी क्लब या ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, या देश से निकाल दिया जाएगा। ये आजादी का जो लिफाफा है ना, जो पैकेज दिया जाता है, मुझे भी जो दिया गया, उसको मैंने जब खोला बड़े चाव से, मुझे एक भी आजादी नहीं मिली। मेरे हाथों में अभी भी गुलामी के जो हैं वो जंजीरें हैं। वो बात अलग है कि मैं कभी आज़ादी नहीं मनाता, क्योंकि मैं गुलाम हिंद का नहीं, मैं आज़ाद हिंद का वासी हूँ। मेरे बुजुर्गों ने कभी अंग्रेजों से हाथ नहीं मिलाया, सो मैं अनकॉलोनाइज सरदारों में से हूँ। हमें नहीं मालूम कि गुलामी क्या होती, क्योंकि हम कभी गुलाम हुए नहीं। इसलिए कईयों को दिखते हैं कि अरे कभी बड़ा आज़ाद सा घूमता है, कईयों को दिक्कत होती है, उनको मालूम ही नहीं कि वो मस्ती में जो चलते हैं, वो कभी उनको मालूम ही नहीं कि गुलामी हुआ क्या करती है। ना कभी किसी गुलाम करें, ना कभी वो गुलाम हों। हैं सो मेरी जो मेरी जो सुझाव है, मेरी अर्जोई है, मेरा मशवरा है, मेरी दुआएं भी हैं। दुआएं तो यूं हैं कि आपका जो नवा साल जो बैसाखी के पर्व में चलता है, बैसाखी की शुभकामनाएं आपको दे रहा हूं कि आपका जो अगला साल है वो आपको इतना बल मिले कि आपके जीवन में अगर दुख आए, अगर सुख आए, अगर खुशी आए, अगर गमी आए, तो आप अपने खिड़े मत्थे पे, यानी कि खिले हुए माथे पे उसको कबूल करें। परमात्मा की दात जानकर कि ये अजब खेल है उसने रचा। जैसे जल मह कमल अलेप, गुरु साहब कहते हैं, कमल की तरह आप अचेत और अचल होकर आप उसे सह सकें, उसे सहार सकें और खुश रहें, सदाबहार रहें, और अपनी जो खुशबू है उन बहारों की आप बांट सकें। बल्दी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉक का हिस्सा बनने के लिए। और आपकी जो गुजारिश है नए साल के लिए नाना चाहेंगे, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम अलग हैं और उसे अपनाएं, और अपने बारे में सोचने के साथ साथ हर बार दूसरों के बारे में भी सोचें। ये एक ऐसी सोच, एक ऐसी गुजारिश है जो हमारे कल को, हमारे आज को बहुत बेहतर बना सकती है, और वननेस की यही एक शुरुआत है। सत्कर्तार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वार्ता में हिस्सा बनने के लिए। हमारी अगली वार्ता 13 मई को शाम 4:30 बजे होगी, जिसमें मिस्टर अस्करी नकवी, जो कि एक क्लासिकल सिंगर, दास्तां गो, थिएटर आर्टिस्ट, सोजन गो, सोजखानी आर्टिस्ट और स्पेशल क्विजीन में इंटरेस्ट रखने वाले हमारे नेक्स्ट स्पीकर होंगे। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, YouTube channel, and do join us for the next series, Oneness in Musical Rendition. And again, I would like to announce that on this auspicious occasion of Baisakhi, we are launching Sangreh Saptera Foundation, which is a not-for-profit organization which will now work towards innovation in process, innovation in product, and livelihood generation in various crafts, ranging from chikankari, zardozi, fulkari, bagru print, bag, extra weave, web weaving, and dari, panjadari. Do stay tuned and do keep supporting us so that we impact more lives and create more experiences. और वही अनुभव, वननेस का अनुभव हम आपके साथ हर बार शेयर करेंगे। See you for the next stop. Thank you.